ایک دن بازار میں ایک 25 سالہ جوان ملا۔ کہنے لگا، بیوی جی مجھے کام پر رکھ لو، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اس کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا، وہ پورے گھر کی صفائی کرتا۔ ایک دن اس جوان کو رات کے وقت اپنے کمرے میں دیکھا تو کہنے لگا، مجھے لگا آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے دیکھنے آیا تھا۔ اسی وجہ سے اگلے روز میں نے کمرے میں کھانا منگوا کر نہیں کھایا اور سونے کا بہانہ کر لیا۔ رات کو پہلے وہ نوجوان آیا، پھر اس کے بعد ایک شخص آیا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں جلد ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آدھی رات کو جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ دو لوگوں نے میرے ساتھ، میرا نام کومل تھا اور میں 22 سال کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، ایک دن بازار گئی تو میری وجہ سے ایک 25 سالہ جوان موٹر سائیکل سے نیچے گر گیا۔ میں نے اس جوان سے معذرت کی تو وہ کہنے لگا کہ بی بی جی مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ میں پہلے ایک دکان پر نوکری کرتا تھا، لیکن پھر وہ دکان بند ہو گئی اور میں بے روزگار ہو گیا۔ میں روزانہ کام کی تلاش میں بازار آتا ہوں، لیکن مجھے کوئی کام دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں بہت ہی بری حالت میں گزر بسر کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر تھوڑی سی مہربانی کر دیجئے، آپ جو بھی کام کہیں گی میں کر دوں گا۔ اس نوجوان نے زبردستی میرے ہاتھ سے سامان کی تھیلیاں پکڑ لیں اور کہنے لگا کہ بی بی جی میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے گا۔ اس نوجوان کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت رحم آیا، وہ بہت اچھے اخلاق والا لڑکا تھا۔ میں نے اس جوان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیتی ہوں، مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مجھے سودا سلف لا دے اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دے۔ اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو چلو میرے ساتھ ہی۔ میری بات سن کر اس جوان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے اس جوان سے اس کی رہائش کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دوسرے شہر سے یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا ہے اور اپنی والدہ کی دوائی کے لیے ہی محنت کر رہا ہے۔ ہر بیٹے کی طرح وہ بھی اپنی والدہ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر چاہتا ہے۔ میں نے اس عمر نامی نوجوان لڑکے کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر آ کر میں نے عمر کو گھر کے تھوڑے بہت کام کاج سمجھائے۔ میں عمر سے صاف ستھرائی کا کام کروانا چاہتی تھی۔ میرا گھر یوں تو زیادہ گندا نہ ہوتا تھا، لیکن میرے پاس صفائی کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ عمر نے مجھے بتایا کہ وہ بہت اچھا کھانا بھی پکا لیتا ہے اور وہ اپنی خوشی سے میرے لیے کھانا بھی بنا دیا کرے گا۔ میں خود ایک نوکری پیشہ عورت تھی، اسی لیے میں نے عمر سے کہا کہ وہ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لے۔ میں اسے بہت اچھی تنخواہ دوں گی۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی اور نوکری کے ساتھ ساتھ گھر کی دیکھ بھال کرتے کرتے بہت تھک جایا کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس نوجوان عمر کو خوشی خوشی رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت ہی بھلا انسان لگا تھا۔ عمر کو میں نے گھر کے ایک کمرے میں رہائش بھی دے دی۔ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ بہت عرصہ پہلے میں اپنا گھر، ماں باپ سب چھوڑ کر الگ ہو گئی تھی۔ میں سارا وقت اکیلی گھر اور دفتر کے کاموں میں الجھی رہتی اور مجھے آرام کا وقت بھی نہ ملتا۔ کبھی کبھی تو میں تھک کر اس قدر چور ہو جاتی کہ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر گر جاتی۔ عمر کو رکھنے کے بعد میں گھر کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ عمر نے 2 ہی دنوں میں گھر کی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھ لیا تھا اور وہ پوری ایمانداری اور لگن سے گھر کے کام کاج کر رہا تھا۔ میں نے اسے صفائی ستھرائی کے لیے رکھا تھا، لیکن اس نے خود ہی باورچی خانے کی ذمہ داریاں بھی اٹھا لی تھیں۔ اس نوجوان کے پکائے ہوئے کھانوں میں بھی اس قدر ذائقہ تھا کہ میں روزانہ پابندی سے رات کو گھر کا کھانا کھانے لگی تھی، ورنہ عموماً رات کا کھانا میں باہر سے منگوا لیا کرتی تھی یا پھر بھوکی ہی سو جاتی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اب مجھے ایسی نیند آتی کہ میں بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی اور پھر صبح سویرے ہی میری آنکھ کھلتی۔ عمر کے آنے سے پہلے میں اپنی نیند کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ مجھے ساری رات بستر پر لیٹے رہنے کے باوجود بھی نیند نہیں لگتی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرا سارا جسم درد کرتا تھا، لیکن شاید عمر کی موجودگی نے مجھے ذہنی طور پر اس قدر پرسکون کر دیا تھا کہ مجھے بہت اچھی نیند آنے لگی تھی۔ اس نوجوان عمر کو کام پر رکھے 15 دن ہو گئے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا کہ جب ایک رات مجھے دفتر کا کچھ کام نپٹانا تھا، اسی لیے میں نے کھانا ایک طرف رکھ دیا اور پہلے کام کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نوجوان کمرے میں آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دیکھنے چلا آیا۔
क्योंकि आपके कमरे की बत्ती जल रही थी तो मुझे आपकी फ़िक्र हुई। मैंने उमर से कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना काम कर रही हूँ, आप भी जाकर सो जाएं। वो नौजवान चला गया। जब अपना काम ख़त्म करके मैं सोने लेटी तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद ये सवाल आया कि ये नौजवान उमर इतनी रात तक क्यों जाग रहा था, जबकि वो तो मुझसे भी पहले से उठा हुआ होता है। मैं जब सोकर उठती तो वो नौजवान घर की सफाई भी कर चुका होता और मेरे लिए नाश्ते की तैयारी में लगा होता। इन्हीं सोचों में गुम मैं कुछ देर बाद सो गई थी और मामूल के मुताबिक सुबह उठकर दफ्तर चली गई। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में इस नौजवान उमर को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। मैं इस जवान उमर को बिल्कुल भी नहीं जानती और मैंने उस पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उसे अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे दफ्तर में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना था और अब ऐसे में इस जवान उमर को लेकर भी मेरे जहन में एक नई जंग छिड़ गई थी। वैसे तो मैंने इस जवान को बहुत अच्छा और नेक ही पाया था। वो पाबंदी से नमाज़ों की अदायगी भी करता और दिल लगा कर घर के कामकाज भी करता। मुझे इससे कोई तकलीफ़ न थी। लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो नौजवान उमर ने फ़ौरन चाय बना ली और मेरे कमरे में ले आया। मैंने उमर से पूछा कि उसकी अम्मी की तबीयत कैसी है, तो बोला, मेम साहिबा, मेरी खुद की अभी शादी नहीं हुई, 2 बहनें हैं जो छोटी हैं और अम्मा ज़्यादातर बीमार रहती है। बस इसकी वजह से दर बदर नौकरी कर रहा हूँ ताकि कुछ पैसे मिलें और माँ का इलाज करवा सकूँ। इतना कहते वो आंखें भर आया और वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी कि न जाने मैं इस जवान पर शक करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक दफ़ा इस जवान को आजमा लेना चाहिए और रात में मैंने खाना ना खाया बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी सोने के लिए लेट गई। मैं आंखें बंद किए काफ़ी देर से लेटी हुई थी लेकिन कुछ भी ना हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि मैंने फजूल में ही एक नेक इंसान पर शक किया और न जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और वो नौजवान कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ही सोने के लिए लेटी थी। इस जवान ने यकीनन घर की एक्स्ट्रा चाबियों से कमरे का दरवाज़ा खोला था। मेरी सांस रुक गई थी। रात के इस पहर वो न जाने मेरे कमरे में क्या करने आया था। मुझे सोता हुआ देखकर वो वापस कमरे से बाहर निकल गया। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। लेकिन उस वक़्त मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब उस जवान के पीछे एक ऐसा शख्स कमरे में दाखिल हुआ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स आधी रात को मेरे घर में भी मौजूद हो सकता है। वो शख्स मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास ही बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे वजूद पर जमी हुई थीं। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा मेरी तो जान निकल गई और मैं उठ बैठी। मुझे जागता हुआ पाकर वो शख्स भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद सो रही हूँ। मैंने फ़ौरन ही कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दीं और शोर मचाया तो वो नौजवान मेरे कमरे में आ गया। मैं गुस्से से उस जवान की तरफ देख रही थी और वो नज़रें झुकाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि वो रात के इस वक्त मेरे घर मेरे कमरे में क्या कर रहा है। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो शख्स मेरे कमरे में क्यों आया है। मैं जब अपना घर छोड़कर नौकरी की घर से निकली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, ख़ासकर उस वक़्त जब आपके सर पर बाप या भाई का साया ना हो। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में तो लग गई थी लेकिन वहाँ का मालिक जो मेरा बॉस था मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी का बायस बन गई थी। उसकी बेबाक नज़रें हर वक्त मेरे वजूद पर जमी रहतीं। वो अधेड़ उम्र मालिक मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो गया था और उसने दफ्तर में मेरा काम करना भी मुश्किल कर दिया था। बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती वो जानबूझकर उतना ही मुझे तंग करता। जब मैं उसके कमरे में ना जाती तो वो खुद मेरे केबिन में चला आता और मुझसे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत में फतूर है। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि वो मुझे बहुत अच्छी प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसीलिए मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इतनी घटिया सोच का मालिक भी होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए शर्म महसूस ना हुई।
जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, दफ्तर में एक हंगामा खड़ा हो गया और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही की थी कि जब उसके चेलों ने मेरे खिलाफ बयान दिया और कहा कि मैं उनसे प्रमोशन मांग रही थी, और जब उसने मुझे प्रमोशन देने से इनकार किया तो मैंने उसे बदनाम करने के लिए साजिश की है। उसके झूठ पर मैं दंग रह गई थी। वो मालिक था, सब ने उसी पर इतबार किया, लेकिन मेरी एक ना सुनी। उस दिन के बाद मैंने कंपनी मालिक से दूरी इख्तियार कर ली। कोई भी काम होता तो मैं मैनेजर के कमरे में किसी सूरत ना जाती और क्लर्क के ज़रिए से तमाम काम करवाती थी। लेकिन एक दफ़ा फिर से वो आधी रात को अपने कमरे में अपने मालिक को देखकर मेरी जान निकल गई थी। वो इस कदर बेगैरत निकला था कि उसने आधी रात को मेरे घर में निशाना लगा लिया था। जब मैंने मालिक का गिरबान पकड़ा तो वो कहने लगा कि मैंने जिस तरह उसे पूरी कंपनी के सामने जलील किया, वो मुझसे इस बात का पूरी तरह बदला लेना चाहता है। मालिक को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं अकेली रहती हूँ। उसने मेरी सारी मालूमात जमा कर ली थी कि मैं घर के कामकाज के लिए किसी शख्स को मुलाजिम रखना चाहती हूँ, और उसने जानबूझकर अपने मुलाजिम को मेरे रास्ते में भेजा और मेरे घर तक रसाई हासिल कर ली। वो नौजवान जो मेरे घर नौकरी कर रहा था, दरअसल वो कंपनी मालिक का मुलाजिम था, और उसके कहने पर ही वो मेरे घर आए थे। थोड़े दिनों में ही इस जवान ने मेरे घर की एक एक बात कंपनी मालिक को बता दी थी, और वो जान गया था कि वो बहुत आसानी से मेरे कमरे तक आ सकता है। कंपनी मालिक मेरे साथ अपनी नाजेबा तस्वीर बनाना चाहता था ताकि वो सारी ज़िंदगी मुझे ब्लैकमेल करके अपने बिस्तर की जीनत बना सके। लेकिन उससे पहले ही उसकी सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं था, और इसीलिए इसके लिए मैं एक आसान हदफ साबित हुई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे अब्बा ठीक ही कहा करते थे, बेटियां अपने घर की चार दीवारी में ही महफूज होती हैं। मैंने उस जवान की तरफ एक शिकवा भरी नज़र डाली और उससे कहा, आप तो मेरे भाई की जगह थे। मैंने आप पर इतना भरोसा किया कि आपकी मजबूरी की दास्तान सुनकर आपको अपने घर ले आई, आपकी वालदा के इलाज का बंदोबस्त किया, लेकिन आपने मेरे साथ ये अच्छा किया है क्या? उस जवान उम्र ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली और कहने लगा कि वो अपने मालिक के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था। उसके मालिक ने उससे कहा था कि अगर वो मालिक का ये काम करेगा तो मालिक उसकी वालदा का बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा और बच्चियों की शादियां भी करवाएगा। इस लालच की वजह से वो उसकी बात मान गया, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी और माँ के लिए उसने किसी और की बेटी की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। कंपनी का मालिक अभी तक मेरी कोई तस्वीर नहीं बना सका था, इसीलिए मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस नौजवान ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, उसे अपनी गलती पर पछतावा भी था। वक्ती तौर पर वो अपने मालिक की बातों में आ गया था, लेकिन वो दिल से एक अच्छा इंसान था। कंपनी मालिक की गिरफ्तारी की खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसके तमाम शेयर बंद कर दिए गए। इसके बाद मैं इस नौजवान उम्र को मैंने अपने ही घर में दोबारा से मुलाजमत दे दी। मैं अपने माँ बाप से पहली दफ़ा मिलने के लिए अपने घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। मैं अब उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे अपने वालिद की बातें बहुत बुरी लगा करती थीं, लेकिन अब मुझे पता चला था कि कहीं ना कहीं वो मुझसे ज़्यादा ज़माने की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे अब्बा ने सब कुछ बुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने अब्बा को बताया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हूँ और अब मैं शादी भी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा मुस्कुरा उठे और कहने लगे, तुम्हें जो भी लड़का पसंद हो हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती और अब्बा जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। अब्बा ने अपनी पसंद से मेरी एक ऐसे लड़के से शादी करवा दी जिसे मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने एक सबक सीख लिया था कि जिस औरत के सर पर किसी महरम मर्द का साया नहीं होता, ज़माना उसे नोचने के लिए तैयार रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।